So today's topic is empirical and molecular formula. So first of all we will write the empirical formula. The formula which give or which express the simple whole number ratio of atoms present in one molecule of substance. The main thing is the formula which gives the simple whole number ratio. Molecular formula, the formula which express the actual ratio of atoms, ratio of actual ratio of atoms present in the one molecule of a substance. So empirical formula give the whole number ratio, simple whole number ratio, and the molecular formula give the actual ratio of various atoms present in the molecule. For example, if we have a glucose, its formula is C6H12O6. So this ratio of atoms, like there are 6 atoms of hydrogen, carbon, 12 atoms of hydrogen, 6 of oxygen. So this is its actual ratio. This is its actual ratio. So it means the C6H12O6, which express the actual ratio, which give the information about the actual ratio. So this C6H12O6 is the molecular formula of glucose. Now simple whole number ratio, so let's make this ratio simple. So it become 1:2, 2:1. So this is here simple whole number ratio. Whole number means not in fraction. तो अब जब इस सिंपल रेशो के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये बन जाएगा CH2O. Now this formula CH2O which express the simple ratio that there is 1 carbon, 2 hydrogen and 1 oxygen. So it is its empirical formula. So empirical formula give the simple ratio. So this is the empirical formula of glucose because it gives the simple ratio, and this is the molecular formula of glucose because it gives the information about the actual number of atoms present in the one molecule of glucose. Okay, now write a short problem to understand it more. So the problem is empirical formula of acetylene and benzene. Empirical formula of acetylene and benzene is CH. If molecular mass of
acetylene and benzene. If molecular mass of acetylene and benzene is 26 and 78 respectively, then calculate the molecular formula of both. So this problem will clear the relation between the empirical formula and molecular formula. So there is a relation between empirical and molecular formula, that is molecular formula equal to n into empirical formula, where n is a whole number, 1, 2, 3, 4. So n will be your whole number. So how to calculate n? For the calculation of this n, you have to write the molecular mass divided by empirical formula mass, means the mass of empirical formula. So now, according to the problem, now the empirical formula is CH, means your empirical formula is CH, that is same for both acetylene and benzene, but the molecular mass is different. So for acetylene, what will be n? Molecular mass of acetylene is 26. Empirical formula mass, the mass of this is empirical formula, so its mass is 12 plus 1, 13. So value of n is 2. So now what is the molecular formula of acetylene? 2 into CH, it becomes C2H2. Same is for benzene. For benzene, the value of n is, what is the molecular mass of benzene? The given is 78. So 78 divided by empirical formula mass, that is 13 to 6. So what is the molecular formula of benzene? 6 into CH. So it becomes C6H6. So this is the relation between empirical formula and molecular formula. Next is, some compounds are given, its molecular formula is given, and you have to write the simple ratio, means you have to write the empirical formula of those compounds. So question is, write the empirical formula of the following. Also find value of n. So first is, the compound given is H2O2. You have to write down its empirical formula and value of n. What will be the empirical formula of H2O2? It will be simple ratio 1:1HO. What is the value of n? Is 2. B2H6. Its empirical formula will be BH3, and again the value of n is 2. C6H6. Empirical formula is CH. Value of n here is 6. C6H12O6. So its empirical formula is CH2O. Value is again 6. Value of n is 6. So if we have FeSO4, its empirical formula will be same, because it is already present in its simplest ratio. So value of n here is 1. C4H10, its empirical formula will be C2H5. So what is the value of n? The
value of N is 2. Next is N2O4 empirical formula. NO2 value of N is again 2. Next, Al2O3. What will be its empirical formula? Same, because it is already present in its simplest ratio. So its empirical formula is Al2O3 and value of N is again 1. Sucrose or sugar C12H22O11. Its empirical formula is also same, because you can't make it simple. So again value of N is 1. Calcium phosphate Ca3PO4 twice. Again the molecular formula and empirical formula are same. So value of N is again 1. So in this way we can write the empirical formula of any given compound by taking that compound into a simplest ratio. Next is how to calculate empirical formula. Before that, we will discuss about the percentage composition. Percentage composition means how much means कितने percent every element. If suppose we have NaOH, तो what is the meaning of percentage composition? कि इसमें सोडियम की कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन का कितना परसेंट है और हाइड्रोजन का कितना परसेंट है. तो ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ सोडियम, यहाँ पे आ जाएगा इसका टोटल मास इनटू क्या कर देंगे 100. जैसे अगर परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालना है तो 23 इसका मास होता है, ओवरऑल मास जो इसका वो होगा 40 इंटू 100 कर देंगे. अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो 16/40 इंटू 100 हो जाएगा. अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो 1/40 इंटू 100 हो जाएगा. तो ये तीनों परसेंट जो है वो टोटल 100 के इक्वल आ जाएगी. तो ये परसेंटेज कंपटीशन का मतलब होता है कि आपको फाइंड करना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की एक कंपाउंड के अंदर कितनी परसेंटेज है. जैसे एक और एग्जांपल, सपोज सोडियम कार्बोनेट दिया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 106 होता है. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम? सोडियम यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू 23/106 इंटू 100. परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो 12/106 इंटू 100. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है तो 3 इंटू 16/106 इंटू 100. तो ऐसे हम परसेंटेज किसी की भी निकाल सकते हैं. अब इसमें क्या होगा कि हमें जब भी फार्मूला निकालना है एम्पिरिकल फार्मूला, तो हमें परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी कंपाउंड की दी होगी, तो उस परसेंटेज कंपोजिशन से हमें उसका फार्मूला ड्राइव करना है. तो ये मेथड अब सीखते हैं. तो इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनेगा, उसमें 3, 4, 5 कॉलम होंगे. तो डिटर्मिनेशन ऑफ EF एम्पिरिकल फार्मूला. आपको गिवन क्या होगा? आइदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स और वेट बाय वेट रेशियो, ये आपको गिवन होगा. तो उसके लिए टेबल में फर्स्ट कॉलम जो बनेगा उसमें हम लिखेंगे एलिमेंट का सिंबल, दूसरे में लिखेंगे उसकी परसेंटेज, तीसरे में लिखेंगे उसका एटॉमिक मास जो जनरली दिया होता है. कुछ एलिमेंट है जिनका आपको याद रखना है. उसके बाद अब यहाँ पे जो परसेंटेज दी है तो उसके बाद जो उसका एटॉमिक मास लिख लेना है. उसके बाद आपने निकाला है एटॉमिक रेशियो. तो ये एटॉमिक रेशियो कैसे आएगी? परसेंटेज को डिवाइड कर देना है उसके एटॉमिक मास से. परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास.
अगर परसेंटेज की जगह पे आपको वेट बाय वेट रेशो दे दिया डायरेक्टली, तो उस रेशो को भी डायरेक्ट आप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, परसेंट और वेट बाय वेट। तो ये आपकी आ जाएगी एटॉमिक रेशो। उसके बाद क्या करना है, आपने निकालनी है इसकी सिंपल रेशो। वो कैसे निकालेंगे, जो सबसे कम आ जाता है उससे सबको डिवाइड कर देंगे। अभी जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। लास्ट में आ जाती है आपकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये कॉलम तब काम करेगा जब आपकी रेशो जो है वो सिंपल होल नंबर नहीं आ गई। तो उसको होल नंबर में बनाने के लिए हम उसको 2 से 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पूरा टेबल है जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला जो कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट एक प्रॉब्लम है, यहाँ मैं प्रॉब्लम नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को फिर सॉल्व करेंगे इसी टेबल में। तो हाइड्रोकार्बन कंटेन, प्रॉब्लम 1, हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन, हाइड्रोकार्बन में दो ही चीज होंगी, एक कार्बन और दूसरा हाइड्रोजन। तो उसने कार्बन दे दी, इसका मतलब हाइड्रोजन 20% हो गया, ये यहां से क्लियर है। इफ molecular mass of hydrocarbon is 30 of hydrocarbon is 30, then calculate its molecular formula and empirical formula। हमने दोनों कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कार्बन की आपको दे दी उसने 80%, तो परसेंटेज हाइड्रोजन की कैसे निकालोगे, 100 माइनस 80, वो आ जाएगा 20%। क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट यहां लिख लेंगे। इन दोनों की परसेंटेज 80% ये है, 20% ये है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 है। एटॉमिक रेशियो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास 80/12 हो जाएगा और यहाँ 20/1 हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसको आप लिख लो 20/3, इसको 20 रहने दो। ज्यादा शॉर्ट में जाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इन दोनों की रेशियो निकालनी होती है, जितनी इजीली हम निकाल पाए। पॉइंट में निकालने की हर वक्त जरूरी नहीं होता, कई बार हम पॉइंट्स में निकालेंगे, नहीं तो अदरवाइज ऐसे ही हम कर लेंगे। अब दोनों में से छोटा कौन है, 20/3 स्मॉलर देन 20। तो हाउ टू फाइंड दी सिंपल रेशियो, डिवाइड ऑल दीज कार्बन हाइड्रोजन 3 4 भी हो सकते हैं बाय द स्मॉलेस्ट वन। सो 20/3 अबाउट 20/3, 20 डिवाइड बाय 20/3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 3। तो ये रेशो पहले ही सिंपल आ गई, तो आपकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी यही रह जाएगी। तो ये आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये तो बन गया CH3। अब हम फार्मूला लगाएंगे जो रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, जो हमने पहले यूज किया था। तो N की वैल्यू आ जाएगी मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मास दे दिया उसने 30, एम्पिरिकल फार्मूला का मास होगा 12 + 1 × 3 15। तो इसको 15 से डिवाइड करेंगे, N की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अब इसका क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन का 2 × CH3, ये हो जाएगा C2H6। अब आप C2H6 का अगर मास देखोगे तो वो 30 होगा। C12 × 2 + 6 24 + 6 30। तो ऐसे हम एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूले के लिए हम ये टेबल बनाते हैं। अगर आपको थ्योरी में करना है तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। एमसीक्यू के लिए आपको सीधी रेशो ले लेनी है, जितना भी परसेंटेज दिया है तो उसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है
So problem number 2. Compound of carbon, hydrogen and oxygen. Compound of carbon, hydrogen and oxygen contains 52.2% carbon and 13% hydrogen. Find the empirical formula. तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन की परसेंटेज उसने दे दी 52.2, हाइड्रोजन की भी दे दी। ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? 100 में से दोनों का सम को माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगी 34.8। इसका मास 12, इसका मास 1, इसका मास 16। रेशो निकालोगे 52.2 by 12, 13 by 1, 34.8 by 16। तो फर्स्ट रेशियो जो है वो ऑलमोस्ट 4.36 आ जाएगा आपका, ये तो 13 ही रहेगा, और नीचे वाला 4.36 का अप्रोक्सीमेटली आधा आएगा 2.17। अब सबसे छोटा कौन है? 2.17। तो आप क्या करोगे? 4.36 डिवाइड बाय 2.17, 13 डिवाइड बाय 2.17, 2.17 डिवाइड बाय 2.17, ये तो हो गया 1। 13 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, और इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 2। तो आपकी जो रेशियो है वो क्या बन गई अब? 2, 6, 1। तो फार्मूला आपका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन गया? C2H6O। So very simple. Third problem. So problem number 3. अब थर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है? रेशियो दी हुई है वेट बाय वेट। तो P3 कंपाउंड of carbon, hydrogen and nitrogen contains compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains these elements in the weight ratio of 9:1:3.5। ये आपको दे दिया 9:1:3.5 वेट रेशियो दे दी। आगे कह रहा है इफ molecular mass of compound is 108, अगर आपको molecular mass 108 दिया है तो आपने कैलकुलेट करना है इसका EF and MF, empirical formula and molecular formula। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है? वेट रेशियो। तो वेट रेशियो में भी आपने वही करना है, परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन का उसने दे दिया 9, 1, 3.5। तो सीधा मास से डिवाइड कर दो इसको। कार्बन का आ गया 9/12, हाइड्रोजन का 1/1 और नाइट्रोजन का 3.5/4। तो इसको भी आप ज्यादा पॉइंट में लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3/4 हो गया, ये आपका 1 हो गया, और नीचे वाला आपका 1/4 हो जाएगा। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है? दैट इज 1/4। तो 1/4 से डिवाइड करेंगे। 3/4 डिवाइड बाय 1/4, 1 डिवाइड बाय 1/4, 1/4 डिवाइड बाय 1/4। ये तो 1 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। ओके, सो ये बन गया हमारा 3,
412. What is the empirical formula? That becomes C3H4n. अब नेक्स्ट जो काम करना है वो है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उसके लिए वही रिलेशन होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू इम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें हम n की वैल्यू निकालेंगे पहले। n इज 108 मोलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। इसका मास निकालें 3 इंटू 12, 1 इंटू 4 एंड 14। तो इसको कैलकुलेट करोगे, इसका मास कितना आ जाएगा 54। तो 54 यहाँ पे, तो n की वैल्यू आ गया आपके पास 2। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला? 2 इंटू C3H4n। तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है C6H8n2। तो ऐसे रेशो वाली प्रॉब्लम में आपने सीधा उसको डिवाइड कर देना है, उसको और करने की जरूरत आगे नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम करेंगे डिफरेंट टाइप्स की। आज के लिए इतने काफी है।